Hello students, once again welcome in the Real Academy's YouTube channel. And in this session, we'll revise the important chapters of physics according to your school exam. So let's start the basics one, that is chapter number 1, which is connected to the measurement. That everyone knows about the measurement ka system, key to measure some different types of parameters, we use the system of units. And these units are divided into SI units, which is called as a fundamental units, and then derived units. So measurement is a system to measure any physical quantity as per the previous standard. Like if I want to if I want to measure the mass of my body, the previous standard is determined is in kg. Everyone knows 1 kg is equal to how much, 10 kg is equal to how much, 50 is equal to how much. With respect to that, they'll compare my body in terms of the mass, same in terms of height, same in terms of body mass index. So there are two systems. The first one is the SI, that is the International System of Units, which is also called as the fundamental units. And based on that, there are derived units. Then to determine the unit, there are two, three things which is required. The first thing, that is the accuracy. The measurement, the correctness should be there. Then the precision, that every machine should measure the same value repeatedly. If mass is 50 kg, then it should show 50 kg multiple times. ऐसा नहीं कि 50 kg अभी 52 बाद में 49 बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड देन लीस्ट काउंट, जो भी यहाँ पे मेजरमेंट में मिस्टेक्स होगा वो कम से कम होना ही चाहिए. एंड देन इट शुड गिव द माइन्यूट डिफरेंस. मींस माय मास इज 50.20 kg, तो द 0.20 इट आल्सो मोर इंपॉर्टेंट. समटाइम्स इट शोज 0.20 के बाद और 3-4 डिजिट, दैट मींस इट इज मोर प्रिसाइज. तो लिस्ट काउंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. These are the 7 fundamental units that we use in our day-to-day life. That is the length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminant intensity. That is also known as a candela. The 7 fundamental units का table पहले से टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है. You can also revise, but more important. And based on that, are multiple derived units. टेक्स्ट बुक में पूरा सा बड़ा एक पेज वहाँ पे कंडक्टेड किया. So based on that area, it is a meter square. Volume, it is a meter cube. Density is a kg per meter cube. Then we have the acceleration meter per second square. Density is equal to kg per meter cube. बोला force is mass into acceleration, to kg meter per second square, which is also called as Newton 1. Then the pressure is a force upon area, that is a Newton upon meter square, which is derived in terms of Pascal also. And then what the work energy? Work energy both have same unit, that is the force into displacement, that is Newton into the meter, which is also called as Joule. There's a multiple type of the derived unit system में आने वाले. Then the most important thing, that is different type of the scale. We have the meter scale, which is from 1 meter, which is equal to 100 centimeters. And in that, अपने को छोटा छोटा एक एक सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर विच इज 1 मिलीमीटर इतने स्केल यहाँ पे दिए हुए. बट ये लीनियर स्केल, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट काउंट करना है हाइट एंड लेंथ तो यूजफुल. लेकिन ऑब्जेक्ट स्पेरिकल होगा तो दैट टाइम व्हाट वी रिक्वायर, दैट इज अ वर्नियर कैलिपर. ऑब्जेक्ट सिलिंड्रिकल होगा तो दैट टाइम यहाँ पे वर्नियर स्केल यूज होगा, वर्नियर कैलिपर यूज होगा. इसका लिस्ट काउंट इज 1 MST minus 1 VST upon number of VST division. Major scale division and vernier scale division, these are the full form of MST and VST. Then least count is 0.1 centimeter, which is also called as 1 millimeter. तो यहाँ पे दो स्केल आपको मिलने वाले, एक मेन स्केल एंड एक वर्नियर स्केल. तो वर्नियर स्केल का याद रखना है, वर्नियर कैलिपर का आपको डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के फंक्शंस, ये दोनों चीज आपको याद रखने. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गिव कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस पैरामीटर, तो आपको लिख के आना चाहिए. देन the measurement of the time, it is also one of the most important thing. Time measured in seconds, फिर seconds के बाद minute, minute के बाद hours, hours के बाद days, days के बाद years, ऐसे connectivity बढ़ने वाले. तो ये आपको basic parameter आपको याद रखना है. Then again screw gauge is useful. Again for the spherical object measurement, we can use a screw gauge for the inner diameter, outer diameter of the system. Again screw gauge का list count is pitch upon number of digits on a circular scale. अगेन यहाँ पे दो स्केल लेने वाले, मेन स्केल डिवीजन एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन. तो स्क्रू गॉग डायग्राम एंड द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा. लास्ट पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सिंपल पेंडुलम, जिसके ऊपर मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स कनेक्टेड. तो वी हैव पेंडुलम, दिस पोजीशन इज मीन पोजीशन एंड देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट एंड राइट, जहां से वो विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी पास ऑन होगा. तो एट दिस पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम. The formula is time period is equal to 2 pi square root of L by G. L is equal to length of that pendulum from center of the bob, and G is the acceleration due to gravity, which is 9.8. Everyone knows that. So based on that, this is the formula. Frequency निकालने तो आपको 1 by T करना पड़ेगा. तो again there is some important formula का आपको notes दिया हुआ. So to revise this chapter, you can go for this PDF. इसका description box में link दिया है. You can from that link also
इसको रेफर कर सकते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं। तो क्या क्या पॉइंट है कि ऑलवेज राइट द यूनिट विद द मेजरमेंट। while writing anything आपको यहाँ पे यूनिट इज लिखना है। लाइक लेंथ इज अ 10 बट व्हाट इज 10? 10 इज मीटर ना। तो लाइक मास इज इक्वल टू 100 बट व्हाट इज 100? इट्स अ केजी। देन फोर्स इज इक्वल टू 20 बट व्हाट इज 20? इट्स अ न्यूटन। तो यूनिट आपको यहाँ पे लिखना है। यूज अ करेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट। वर्नियर स्केल कहाँ पे यूज होगा, स्क्रू कहाँ पे यूज होगा, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे भी आएगा टू मेजर दिस सिस्टम विच टाइप ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम यू शुड यूज। तो वर्नियर कैलिपर होना चाहिए कि स्क्रू होना चाहिए कि नॉर्मल स्केल होना चाहिए, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। अवॉइड पैरेलक्स एरर, ये तो प्रैक्टिकल पर्पस है कि पैरेलक्स एरर वहां पे होना नहीं चाहिए। whenever you are measuring any system you should be in front of the object, आपको लेफ्ट एंड राइट खड़ा नहीं होना है, और तो वहां पे पैरेलक्स एरर आ जाती है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक द एवरेज, ये एक्सपेरिमेंटल है। एसआई यूनिट मेक्स कम्युनिकेशन यूनिवर्सल। एसआई यूनिट इज अ कांस्टेंट वर्ड एंड इट इज स्टैंडर्ड वन, उनसे कनेक्टेड, ये साथ से कनेक्टेड मल्टीपल डिराइव्ड यूनिट्स आने वाले। देन अगर मैंने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अगेन, तो दिस आर द क्विक रिविजन्स एंड क्विक कन्वर्जन्स। 1 meter is 100 centimeter, everyone knows. 1 kilometer is 1000 meter. Then 1 minute is 60 seconds and 1 hour is 3600 seconds. If in a 1 hour we take 3600 seconds का conversion, 60 minute 60 seconds ऐसे आएगा ना। Then SI prefix, kilo stand for 10 raised to 3, then centimeter is 10 raised to minus 2, then milli is 10 raised to minus 3, then micro is 10 raised to minus 6, and nano is 10 raised to minus 9. Again, we have the angstrom also, which is 10 raised to minus 10. The chapter थोड़ा lengthy, which have part A, part B, and part C. Part B is more practical based, but part A and part C is normal. तो make sure कि उसको revise करो multiple time, रिटर्न प्रैक्टिस करो, जितनी नंबर उसको सॉल्व करो, सो दैट विल गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट दिस चैप्टर। एंड ये चैप्टर 9th ओनली से 9th स्टैंडर्ड में नहीं, ये 10th में 11th में 12th में कनेक्टेड चैप्टर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। Let's start the chapter 2. Again, one of the most important chapter, which is the base of the motion in one dimension. The Newton law is more connected with this chapter. And then chapter 3, उसके और depth में जाएगा। Then we have the motion and the rest condition. The object is a moving, that is a motion. Object is not moving, that means the rest condition. A reference point means जहां से वो start हुआ है, जहां तक जाएगा, initial point and final point. And then we know that the single line, जहां पे जो with respect to x axis the motion is there, so it is a one dimension. ठीक है। Then what are the different parameters? Scalar and vectors अगर देखा तो scalar means which has only magnitude. So like example, distance, speed, time, mass, temperature, energy. These are the parameters of scalar. इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर देखा तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे होने वाले। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर दी बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। देन ये वेक्टर्स में आ जाएंगे। इवन व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन इट ऑलवेज बिलोंग टू राइट। राइट साइड इज अ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज अ नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को याद रखना। देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड by the object from starting point to ending point, total path. It is always connected in meter. But displacement is the initial and final shortcut कितना है? The shortest path between the initial and final path. Again, the unit is meter. Speed is the distance upon time, तो meter per second. And displacement upon time किया तो we'll get the velocity, which is vector quantity, but unit is same, meter per second. Basic parameter यहाँ पे mention किया. Average speed is a total distance upon total time. But the average velocity is initial velocity plus final velocity divided by 2. Then the acceleration, whenever there is a change in a velocity, the new term which is created, which is called as acceleration, which is v minus u upon t. V stands for final velocity, u is initial velocity, and t is the time. This chart gives you the value of acceleration, positive, negative, and zero. So whenever we have positive acceleration, a is a positive, that is velocity increase हुआ है, u से v का वैल्यू बढ़ गया। Body gains a velocity whenever it is a negative acceleration, that is called a deceleration, retardation. वहां पे आपका a negative मतलब velocity decrease होगा। यहाँ पे u is greater than v and body loses the velocity, and zero acceleration मतलब velocity change हुआ नहीं। You are driving on a scooty but there is no change of accelerator, accelerator use ही नहीं किया आपने, तो acceleration zero, velocity is constant, the body moves with uniform velocity we can say। यहाँ पे जितने ग्राफ है वो ग्राफ आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देयर आर सम फॉर्मूला जो आपको याद रखने, तो थर्ड चैप्टर में वापस रिवाइज होंगे। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, then s is equal to ut plus half 80 square, v square is equal to u square plus 2s, and s is equal to u plus v into t divided by 2. These are the four formulas in terms of Newton laws of motion, chapter 3 से कनेक्ट जाता है। Then velocity time graph अगर देखा तो this velocity time graph is a linear one, यहाँ पे linear graph आने वाला है।
then position on time graph, again this is increasing parameter में दिया. This two graph are very much important and ऐसे multiple graph यहाँ पर सिस्टम में आपको पहले से दिया है. टेक्स्ट रेफर करो, जितने ग्राफ दिए पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम एंड द एक्सेलरेशन टाइम आपको याद रखना है. उस ग्राफ का कंक्लूजन क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं. रेस्ट, मोशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये कंसेप्ट को याद रखने हैं. Then, with respect to A0, U0 and V0, what are the change in this formula? ये जो formulas है, इसमें अगर A0 हुआ तो क्या होगा, V0 अगर तो हुआ तो क्या होगा, U0 is equal to क्या होगा, ऐसे कंडीशन आपको मेंशन किए हुए. तो मेक श्योर चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे ज्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ 11th 12th स्टैंडर्ड, इट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो 9th स्टैंडर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ 10th 11th एंड 12th. ठीक है. What are the key parameter that we need to remember? साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना है. तो बॉडी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, राइट साइड गया तो पॉजिटिव कंसिडर करना है, लेफ्ट साइड गया तो नेगेटिव कंसिडर करना है. देन कुछ क्वांटिटी के यूनिट्स आपको याद रखने हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यूनिट इज सेम, दैट इज मीटर. स्पीड वेलोसिटी द यूनिट इज सेम, दैट इज मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फोर्स इट्स अ न्यूटन. तो कुछ पैरामीटर्स के आपके यूनिट यहाँ पे याद रखने हैं. नेक्स्ट, कौन कौन से मिस्टेक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, दैट इज अ कंफ्यूजिंग डिस्टेंस स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पे सिली मिस्टेक होते हैं. इग्नोरिंग डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन, ए नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, ये आपको याद रखना है. यूजिंग रॉन्ग इक्वेशन फॉर द गिवन डेटा. गिवन पता है, टू फाइंड पता है, लेकिन इक्वेशन कौन सा यूज करना है, बेस्ड ऑन गिवन एंड टू फाइंड इटसेल्फ वी नीड टू डिसाइड कि इनमें से कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है. तो फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस होना चाहिए. रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से रॉन्ग यूनिट लिखते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि फोर्स का यूनिट क्या है. दे ओनली थिंक इट इज अ न्यूटन. न्यूटन इज शॉर्टकट, इट इज एक्चुअली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये पता होना चाहिए कि जूल, बट जूल इज व्हाट, न्यूटन इनटू मीटर, इट्स अ जूल. ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर एमसीक्यू में जूल मेंशन नहीं, न्यूटन मेंशन नहीं, तो सब्स्टिट्यूट यूनिट आपको पहले से पता होना चाहिए. देन फॉरगेटिंग दैट एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. मैंने जितने पेपर चेक करता हूं वहां पे एक्सेलरेशन का v माइनस u इतना लिखते हैं, डिवाइड बाय t ये होता है, ये आपको याद रखना है. इट्स ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सेकंड. What are the exam tips that we need to remember with respect to chapter 2 is always write the given and unknown quantity. The given and to find आपको लिखना है एंड फॉर्मूला के साथ. ड्रॉ डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग एंड नीटली. स्टूडेंट्स का हैंडराइटिंग आईसीएसई बोर्ड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. नॉलेज अच्छा है, उनका प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन रिटर्न जितने पैरामीटर्स है, राइटिंग प्रैक्टिस एंड हैंडराइटिंग, ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिकल कंडीशन से, स्पेशली पेरेंट्स ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. राइट करेक्ट विद प्रॉपर आंसर. चेक द साइन ऑफ योर आंसर व्हाइल राइटिंग एवरीथिंग. लिखने के बाद उसको वापस एक बार रिवाइज करके देखना है, सो गो थ्रू करके देखना है कि कुछ सिली मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, रिटन मिस्टेक कुछ हुआ तो नहीं. लर्न एंड अप्लाई फॉर इक्वेशंस स्मार्टली. ये चार इक्वेशन को प्रॉपर्ली थरो आने चाहिए, इतना हार्ड कुछ भी नहीं. दो तीन बार प्रैक्टिस किया, रिटन प्रैक्टिस किया तो आपके दिमाग में याद रहेगा. प्रैक्टिस करने के बाद आइडेंटिफाई होगा कौन सा इक्वेशन को यूज करें. ठीक है. एंड देन दीस आर सम फॉर्मूला जो आपको पहले से यहाँ पे मेंशन किया. चैप्टर इज अ लेंथी with a multiple formulas, but still if you have an interest in this chapter तो third chapter और easily solve. तो start करते हैं अभी chapter number 3. और let's start the chapter number 3 which is connected laws of motion. तो ये chapter 2 से ही connected है, that is the laws of motion का part. अगर मैंने यहाँ पे देखा तो बेसिक आपको पहले से ही पता है कि मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया इट इज अपोज टू द मोशन. मेरे बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया तो मैं इजीली उसका मूवमेंट नहीं हुआ, मेरे बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ. देन दिस आर द कीवर्ड्स जो अपने डे टू लाइफ पे यूज होते हैं. वन मोर कंसेप्ट इज अ बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स. ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से फोर्स अप्लाई है, स्टिल देयर इज नो मोशन, दैट मींस द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट. बट व्हेनेवर देयर इज अ टू अनबैलेंस फोर्स अप्लाइज एंड बॉडी का मोशन हो रहा है, मींस फोर्स का डायरेक्शन तो रिवर्स है बट वैल्यू भी सेम नहीं. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कनेक्टेड विद द लॉ ऑफ इनर्शिया. तो बेसिक आपको चीज यहाँ पे रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इट विल कंटिन्यू इन द रेस्ट फॉर्म जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो इट विल कंटिन्यू द मोशन अंटिल दिस वहां पे कोई ऑब्जेक्शन पार्ट नहीं आएगा, एक ऑब्स्टेकल नहीं आएगा. आई एम ड्राइविंग द कार, जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं होगा गाड़ी रुकेगा नहीं. गाड़ी इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक कुछ मोशन होगा नहीं. तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू आइदर स्टॉप द मोशन और टू स्टार्ट द मोशन. दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ. Second law is base is equal to F is equal to ma. So whenever there is one object of mass m, if you apply a force,
देन व्हाट विल हैपन, उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी पहले जीरो होगा एंड देन इंक्रीज होगा, और ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में और उसका स्पीड चेंज होगा. तो फोर्स मे बी सपोर्टिव, force may be opposing. With respect to that, acceleration positive, negative होगा. Acceleration is also connected with the mass. जितना mass ज्यादा उतना आपको ज्यादा acceleration चाहिए for the moment of the object, for the motion of the object, which is second law. And second law में आपको formula mention किया, that is F is equal to ma. First formula में formula mention नहीं, first law में formula mention बिल्कुल नहीं. थर्ड इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इफ आई पंच दी वॉल, तो वॉल को भी लगने वाला है बट मुझे भी लगने वाला है, बस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहां पे अप्लाई हुआ. रॉकेट इज गोइंग अप, दैट मींस नीचे से कुछ मोशन अप्लाई किया डाउनवर्ड एंड देन इट इज गोइंग अप. द ऑब्जेक्ट इज स्टेबल ऑन दी बोर्ड और दी टेबल, दैट मींस नीचे ग्रेविटी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. दे आर द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि F1 इज इक्वल टू F2 बट इन टर्म्स ऑफ माइनस. तो निगेटिव यहाँ पे आना चाहिए, देन ओनली द एडिशन बिकम्स जीरो. Then inertia. तो inertia again at a rest condition and again motion condition is there. कोई ट्रक सामने से मोशन में एंड मैं उसको रोकने जाऊंगा तो होगा ही नहीं, बिकॉज बॉडी का मोशन भी है एंड बॉडी का साइज भी जाता है. कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, एलिफेंट सामने स्टेबल है एंड मैं गया भाग के उसको धक्का दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, उसका मास जाता है. तो इनर्शिया इज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट एंड मोशन, ये आपको कंसेप्ट याद रखना. देन दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया. सीट बेल्ट, एयर बैग्स, हेड रिसेट एंड स्पोर्ट्स में यूज करते हैं हाई जंप एंड लॉन्ग जंप के पॉइंट ऑफ व्यू. वहां पे इनर्शिया एट रेस्ट एंड मोशन आपको यूज होगा. अगेन मास इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वेट कंपैरिजन होगा. वेइंग मशीन पे जो दिखता है दैट इज मास, इट इज केजी एंड इट इज द एडिशन ऑफ ऑल पैरामीटर्स, ऑल द मैटर्स एंड इट इज कांस्टेंट यूनिवर्सली. प्लूटो पे भी जाओगे तो आपका मास क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी. अगेन वो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन वो चेंज होगा. इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अफेक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, बट वेट इज इक्वल टू mg, आपको याद रखना. देन फोर्स, पहले से पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव द मोशन. Linear momentum. Momentum, याद रखना, it is a mass into velocity, but there are two types. Because there are two velocity. Initial velocity, so initial momentum m into u. Final velocity, so that there is a final momentum, that is mv. And what is change in momentum? दोनों momentum का subtraction. Final momentum minus initial momentum अगर किया तो आपको क्या मिलेगा? That is change in momentum. उस change in momentum को अगर मैंने t से divide किया तो क्या है? m v minus u upon t. But everyone knows v minus u upon t क्या आता है? That is acceleration. मतलब the rate of change of momentum gives you the force which is Newton's second law of motion. F is equal to ma. Universal law of gravitation. One of the important concept वापस 11th standard में आएगा gravitation. कि whenever we have two objects in the universe, these two objects will attract each other by the force, and that force is a directly proportional to product of दोनों का masses divided by the distance between the them उसका square, but distance center to center होना चाहिए. तो F is equal to G m1 m2 upon r square. What is G? G is a universal gravitation constant 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kg square को याद रखो. ये वैल्यू कभी भी चेंज होगा नहीं. Even for the Pluto it is same. These are the some important formula that we need to remember. तो पहले से लिस्ट आपके पास रेडी होने वाला है. एंड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को याद रखना है. दैट इज इनर्शिया इज अ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन. इनर्शिया विल अपोज द मोशन, ये आपको याद रखना है. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट. न्यूटन लॉज होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑर्डिनरी मोशंस. न्यूटन लॉ एवरीवेयर होने वाला है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. Action and reaction always act on different bodies and laws of gravitation works for all masses in the universe. यूनिवर्स में जितने masses है सबके लिए laws of gravitation apply होने वाले. वो प्लूटो टू अर्थ वो होगा तो भी चलेगा. Then what are the common mistake that we should avoid? Thinking of force is needed to maintain the motion. To maintain the motion, force is not required. हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो फोर्स लगाए तो मोशन में जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट मोशन में फोर्स लगाए तो स्टॉप होगा. तो मोशन के लिए फोर्स चाहिए, स्टॉप करने के लिए फोर्स चाहिए, ऐसा नहीं. ऑब्जेक्ट पहले से भी स्टॉप हो सकता है, ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में हो सकता है. तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स टू मेंटेन द सिस्टम. इग्नोरिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स का डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, इसके लिए प्लस एंड माइनस इफेक्ट होगा. कंफ्यूजिंग द मास एंड वेट, दोनों अलग है, उसका डिस्टिंग्विश क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अप्लाइंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं. एज्यूमिंग एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी. एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पे, मैंने इसको हिट किया सो एक्शन इसके ऊपर हुआ. ये ऑब्जेक्ट ने मुझे भी हिट किया एज अ रिएक्शन, तो एक्शन ऑन सेकंड बॉडी, रिएक्शन ऑन द फर्स्ट बॉडी, ऐसे होने वाला. कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 न्यूटन इज आल्सो 1 kgf.
देन जी ऑन अर्थ इज 9.8, ऊपर जाओगे नीचे आओगे सेंटर पे कुछ अलग होगा. मोमेंटम इज अ कंजर्वेशन इन एब्सेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. तो देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको याद रखना है. इनर्शिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास, जितना मास बढ़ेगा उतना इनर्शिया इंक्रीज होने वाला. And then कुछ basic applications. So chapter 3 is connected with chapter 2 with the more numericals. कंटेंट इतना नहीं, कंसेप्ट ज्यादा है एंड न्यूमेरिकल सोर्स ज्यादा है. उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको आना चाहिए. मिलते हैं चैप्टर 4 विद द प्रेशर कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन, दैट इज चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज प्रेशर. तो क्या दिया कि एवरीवन नोज अबाउट द प्रेशर. इट इज द फोर्स अपॉन एरिया, द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज अ पास्कल आल्सो. तो बेसिक पैरामीटर पहले से आपको पता हुआ. नेक्स्ट थिंग दैट इज अ थ्रस्ट. It is also one of the type of force, but whenever it is a perpendicular to surface, it is called as a thrust. The formula is the same. The thrust का formula, force का formula is the same, but force is equal to pressure into area. So same, this force is called as thrust when it's acting perpendicular to the surface of the system. Next, pressure on the liquid, it is counted in terms of h rho g. H means the height of the liquid column, कितना हम लोग डेप्थ में जाने वाले. G is the acceleration due to gravity, which is majorly 9.8, लेकिन पानी में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है. And the rho is a density of the water. Density of material बाद में होगा, वो relative density में आएगा चैप्टर 5 में. First we are going through the density of the liquid जो यहाँ पे यूज होगा. इसका कन्वर्जन भी आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब, इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वाटर का अगर देखा तो इट इज डेंसिटी इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, बट इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. थोड़ा सा आपको याद यहाँ पर रखना है. देन पास्कल लॉ. पास्कल लॉ मीन्स on the one side if you apply pressure, then on the other side it will show the same pressure whatever the area and what are the forces there, the ratio remains same. So यहाँ पे अगर देखा तो स्केल थोड़ा सा छोटा है, फोर्स कम है, एरिया कम, लेकिन यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, एरिया ज्यादा है. ऐसा अगर मैंने देखा तो द रेशियो ऑफ F1 by A1 gives P1, the ratio of F2 and A2 is also the ratio same, and then it will give the P1 P2. So यहाँ पे फोर्स ऑन द लार्जर साइड, इसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकाला तो वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन रेशियो क्या होगा उसका सेम होगा. सो F1 F2 फोर्सेस ऑन स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन एंड A1 A2 एरिया ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन. इसको याद रखना. फोर्स एंड एरिया आज द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो, उसका मल्टीप्लाई करना नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते, जितने पेपर चेक करते दे डू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया. रॉन्ग. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये आपको याद रखना. Atmospheric pressure is one of the most important thing. Right now we are talking, you are also observing the video. अभी अपने पर जो प्रेशर है, that is the atmospheric pressure, which is equal to 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल और 76 मीटर ऑफ Hg. मर्क्यूरी सिस्टम से देखा तो अर्थ में जितना एटमॉस्फेयर है, it creates a pressure on every body, including the human also. बैरोमीटर सिस्टम में इतना यूजफुल नहीं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मर्क्यूरी बैरोमीटर इज मोर सिंपल बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करने के लिए जो डिवाइस यूज होगा दैट इज नॉट बैरोमीटर. व्हाई द नेम इज बैरो? बिकॉज़ बार इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर. द प्रेशर इज आल्सो काउंटेड इन टर्म्स ऑफ द बार, दैट्स व्हाई आपने उसका नाम दिया बैरोमीटर. थोड़ा आगे बढ़ते. वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना ऊपर जाओगे प्रेशर थोड़ा सा कम होते जाएगा. ठीक है, तो द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. द क्लियर वेदर दैट मींस हाई प्रेशर है, एंड रेनी वेदर मींस लो प्रेशर. आपको यहाँ पे याद रखना है. तो वेरिएशंस इन द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर. देन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, एवरेज नोट इट इज रो जी एच, ये वैल्यू आपको याद रखना है. इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर क्यूब इट इज 1000, इन टर्म्स ऑफ जी सेंटीमीटर क्यूब इट इज 1 ओनली. कुछ बेसिक पैरामीटर आपको याद रखने. द प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. एवरीवन नोस प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ. जितना नीचे आओगे उतना डेप्थ में प्रेशर बढ़ते जाएगा. प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. तो सारे साइड में वहां पे प्रेशर क्या होगा, सेम होने वाला है. पास्कल लॉ इज अ बेस ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन का कंसेप्ट एग्जाम में इतना यूजफुल नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू याद होना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर अबव अस. अपने ऊपर कितना वेट है इसके हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी हो सकता है. अगर मून पे देखा तो एटमॉस्फेयर ही नहीं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर होगा नहीं. देन दिस आर द कन्वर्जन पॉइंट्स ऑफ द ऑल बेसिक कंसेप्ट. देन व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज अ कंफ्यूजिंग थ्रस्ट एंड फोर्स विद प्रेशर. फोर्स एंड थ्रस्ट आर नियरली इक्वल, सिर्फ डायरेक्शन का यहाँ पे डिफरेंस. Forgetting that pressure depends on the depth and density and not on the area of the ship. See, pressure is also connected with area ना. Pressure is equal to force upon area. सिर्फ H rho g इतना नहीं, pressure is force upon area, ये भी आपको याद रखना है. Incorrect units, यूनिट रॉन्ग होते, कन्वर्जन थोड़े से रॉन्ग होते. Then ignoring the effect of altitude on atmospheric pressure. Altitude is more important concept. तो
जितना ऊपर जाओगे जितना नीचे आओगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ ये वेरी होगा. थिंकिंग दैट प्रेशर इज द सेम एट ऑल डेप्थ विच इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कौन सा है उसके हिसाब से वेरी हो सकता है. देन दिस आर द सम बेसिक फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिवाइज द सिस्टम. तो ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी हो, यू कैन रिवाइज दिस पीडीएफ, बट मेक श्योर टेक्स्ट बुक पहले आना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, एंड देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द मैग्नेटिज्म. So let's start the next chapter that is based on magnetism. Again यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं, इट इज टोटली कंसेप्चुअल बेस, बट वापस 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पार्ट एंड 11th 12th में मेजर पार्ट यहाँ पे आने वाला. So magnetism, it is a property of attraction to particular metals only. Iron, cobalt and nickel ये मेजर आपको याद रखना है. Then it attracts the iron, cobalt, nickel. मेंशन किया. Like poles repel, unlike pole attract. North north, south south repel. Like poles है ना. And then north south and south north. These are the unlike poles, so they will attract each other. Every magnet have a बाईपोल सिस्टम. वहाँ पे दो पोल होने ही वाले कंपल्सरी. सिर्फ नॉर्थ पोल ऐसा नहीं होगा, सिर्फ साउथ पोल ऐसा नहीं होगा. इट इज अ फिक्स कि वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल यहाँ पे होने वाले. Then natural magnet is the earth and the lodestone which is the magnetite. And artificial में अगर देखा तो we have the bar magnet, U-shaped magnet and ring magnet, magnetic compass, magnetic needle. ऐसे multiple type यहाँ पे होने वाले. Magnetic lines of force means every magnet creates its own magnetic field in a particular direction that define its area of magnetic field. तो यहाँ पे अगर देखा तो नॉर्थ टू साउथ ये सारे मैग्नेटिक फील्ड जाने वाले. नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इट विल फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट एवरीवन नोस. दैट इज अ बार मैग्नेट, हॉर्सशू, मैग्नेटिक कंपास, रिंग, निडल, कुछ भी होने. देन सब बेसिक प्रॉपर्टी है कि जितने यहाँ पे लाइंस है ये कभी भी ओवरलैप होंगे नहीं. दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. गैप बिटवीन द टू लाइंस आर ऑलवेज सेम एंड दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स. इसको अगर मैंने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या मिलने वाला है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये सारी जितने भी लाइंस है ये कंटिन्यूस कर्व, तो बीच में शेप चेंज नहीं होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा. इट इज अ कर्व ऑफ द सर्कुलर फॉर्म. ये आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखने. देन अर्थ का मैग्नेटिज्म अगर देखा तो दिस मैग्नेट शोज टू मैग्नेट का साउथ पोल gives you the geographical north pole and the magnetic north pole of the earth gives you geographical south pole. मीन geographic and magnetic north pole south pole ये वाइस वर्सा है, ये आपको याद रखना. देन डिक्लिनेशन एंड डीप ये कंसेप्ट सिलेबस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया. यू कैन डू द रिवीजन ऑफ दिस पॉइंट. Then induce magnetism. One magnet is connected with a metal. Now the metal which is connected with the magnet becomes a magnet for few reasons. Because ये connected है and इसके पास magnetic property transferred होंगी. अगर ये इसने किसी metal को connect किया तो वापस वो metal भी क्या होगा? Magnet बनेगा. This concept is called as the induced magnetism. There are many parameters by which we can make induced magnetism, either stroking, conduction and induction. ऐसे तीन मेथड यहाँ पे होने वाले. तो these are the methods जो यहाँ पे मेंशन किए हुए. इतने डीप में आपको कुछ आना नहीं है, बट कंसेप्ट आपको बेसिक याद रखना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मैग्नेट, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, ये आपको सिर्फ आईसीएससी बोर्ड है इसके लिए एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मेंशन किए हुए. राइट हैंड थंब रूल ये भी सिस्टम में डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट आपको बेसिक कंसेप्ट ये वापस 10th स्टैंडर्ड में वापस रिवाइज होगा. इवन ये 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल प्रेजेंट था. तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में सिर्फ कंसेप्ट आपको याद रखने, प्रॉपर्टीज याद रखने, डायरेक्शंस, डायग्राम्स, ये सारी चीजें याद रखनी एंड इसके रिवीजन आपको प्रॉपर्ली करना है. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आने वाले, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, न्यूमेरिकल कुछ आने वाला नहीं. देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फार्मूला ओवर हियर, बट जितना भी टेक्स्ट और कंटेंट है उसको प्रॉपर्ली आपको नोट डाउन करना. बट ऑल दिस पीडीएफ यू कैन रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें पीडीएफ हमको पहले से दिया हुआ है. बट मेक श्योर कि ये वीडियो आपको 2-3 बार रिवाइज करना है. उसके पहले टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करना है एंड एप्लीकेशन बेस का प्रैक्टिस करना है. जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा है. व्हेनेवर यू हैव द क्वेश्चन पेपर, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, अंडरस्टैंड इट एंड देन उसको लिखना है. इमीडिएटली लिखना स्टार्ट मत करो. मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर. तो यहाँ पे स्टॉप करते, ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कुछ भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में यू कैन टेक्स्ट योर डाउट, विल रिप्लाई. मिलते, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच.